आज हम बात करेंगे उर्वशी राउटेला के बारे में। सो कुछ सालों से शी इज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर नंबर ऑफ रीजंस। सम पीपल कॉल्ड हर आउट सेइंग दैट शी इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, देन सम पीपल से कि हर लाइव सेशंस आर डम, एंड ऐसे कई एडजेक्टिव्स उनके लिए यूज किए गए हैं। कहीं ना कहीं वॉट एवर दैट इज बीइंग सेड उसमें थोड़ी सच्चाई भी है, बिकॉज आई हैव सीन हर लाइव सेशन विद लोगन पॉल एंड इट वाज डैम फनी। In India, there have been more than 600 cases, but internationally, there's no count on it. What do you think? Will this stop in near future? No. Am I allowed to swear, or is that like against Indian culture? No, I mean, in India, there have been more than 600 cases, but internationally... No. Am I allowed to say a bad word? She seems a bit pretentious, but then I thought कि why she is the way she is. क्योंकि to be honest ना, आप में से कुछ लोगों की ये मेरा opinion थोड़ा odd लग सकता है, but I'm really impressed by some of the work she does. Like वो खुद ही बोलती है that she is the first female to do this, do that and whatnot. And in most of the cases it is true also. If you remove her self-obsession वाला partner, then she is really an impressive and influential person. 47 million followers होना Insta पे मजाक नहीं है. It is a huge fan following. And if you see ना, she has not only worked with Indian celebrities, but some of the very famous foreign celebrities too. And जो exposure उनको मिला है in terms of work, that is really next level. Then अगर वो इतना अच्छा काम करी है तो why does she get trolled? So I feel it is because of the way she brags about the thing. To be blunt na, I feel like she comes out as a shallow person in some scenarios. We generally tend to love people who are more humble, but उर्वशी के साथ सिनेरियो काफी उल्टा है। छोटा या बड़ा कुछ भी अचीवमेंट हो, she brags about it. खुद की अचीवमेंट दूसरों के साथ शेयर करने में ना कुछ गलत नहीं है. Everyone does that. But the way you do it, that is what matters. Like consider if a person has achieved something, then एक वे होता है जहाँ वो person ये बोलेगा कि I want to tell you all something that I have achieved this and thanks to all for all the support you have given me. I'm grateful. सुनने में humble लगता है. आशीष चंचलानी का कभी स्टोरीज देखना, वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं, बट द वे ही डज दिस वो सुनने में अच्छा लगता है. एंड सेकेंड वे ये करने का ये भी हो सकता है जहाँ वो पर्सन ये बोलेगा कि सी आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम द फर्स्ट एवर पर्सन टू डू दैट एंड नो वन बिफोर मी हैज डन दैट. ये सुन के ऐसा लगता है दैट दे आर बीइंग टू प्राउड अबाउट देमसेल्फ. And Urvashi mostly chooses the second way to share her achievements. That's the reason people consider her self-obsessed. उनका bio ये if you see ना, उसमें I, me, myself ही आपको दिखेगा. अभी जो उनका bio है उसमें she has written youngest most beautiful woman in the universe, only actor to win maximum number of beauty titles in entire history ever, Miss Universe, IITN, singer, investor. So बाकी सब तो ओके ठीक है, चलो उसको लिखना था, but youngest most beautiful woman in the universe ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया. And ये ना ये सब की वजह से she sounds very snobby. तो I was very curious to know the reason why she sounds like this. क्योंकि if you see ना कोई भी person presently कैसे behave करता है, उसका reason जानना है तो उसके past में थोड़ा देखा जाता है. Because all that happens in our past, small events जो भी होते हैं ना, that contributes to our personality. Like अगर कोई person काफी ज्यादा छोटे छोटे चीजों को appreciate करना सीख चुका है, that means उसको कदर है वो चीजों की. Possibility है कि past में वो चीजें उसके पास ना हो. He might know what hardship means. इसलिए he knows to appreciate the things that he has now. And इसी reason के चलते rich people, not all but mostly those people who are born rich and then grow up in an environment जहाँ उनके एक बार बोलने पे चीजें उन्हें मिल जाती है, वो थोड़ा snobby होते हैं. Somewhere they are shallow too. Not all rich kids, but yeah, you can't deny the fact also कि 10 में से 5 लोग आपको वैसे मिलेंगे ही मिलेंगे. And इस वजह से if you see, star kids जो है ना, उनको जल्दी से dumb ये टैग मिल जाता है. क्योंकि इंटरव्यूज के दौरान जब उन्हें नॉर्मल चीजों के बारे में पूछा जाता है तब दे डोंट नो. जैसे अनन्या पांडे जब कपिल शर्मा के शो पे आई थी एंड उन्हें वेजिटेबल्स के बारे में पूछा गया तब वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी. एंड वो इसलिए हो रहा था बिकॉज हिंदी में भाजी का नाम लिया जा रहा था. तो ये क्लिप देख के काफी लोगों ने अनन्या को डम बुलाया. भूमि ये क्या? हाँ ये क्या? ये क्या? ये क्या? ये अनन्या का पूछा अनन्या. अनन्या ये क्या? पुदीना. पालक. पुदीना. पालक. सारी ग्रीन सब्जियां बोलती कड़ी पत्ता. ये पेड़ है. बट ये ना डमनेस नहीं है, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर इंग्लिश में पूछा जाता तो वो बता देती. इट इज जस्ट रिच पीपल थिंग्स विच फैंस और कॉमन पीपल कैन नॉट रिलेट टू. दैट्स द रीजन डम का टैग उन्हें मिल जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतने इजी सवाल का आंसर वो क्यों नहीं दे पा रही. सिमिलरली उर्वशी के साथ भी ये हो रहा है. व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट उर्वशी राउटेला तब उनके अर्ली लाइफ के बारे में पता चला. तब आई गॉट टू नो दैट शी बिलोंग्स टू वन ऑफ द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंडिया एंड काफी यंग एज से ही उर्वशी ब्यूटी पैजेंट्स वगैरह जीतने लग गई थी. नो डाउट शी इज मेस्मराइजिंग, सो यू कैन सी द पैटर्न हियर. सो ग्रोइंग अप उर्वशी ने शायद एक लग्जरियस लाइफ एंजॉय किया होगा. उसके बाद बैक टू बैक पैजेंट्स भी उसने जीत लिए है. तो वो जो शैलो नेचर है ना उर्वशी का, वो इस वजह से हो सकता है और उसमें उसकी गलती नहीं है. जैसे हम रिच पीपल थिंग से रिलेट नहीं कर पाते, वैसे
ऐसी पॉसिबिलिटी है दैट उर्वशी भी नॉर्मल इश्यूज से रिलेट ना कर पाती हो। व्हेन शी हैज नेवर एवर एक्सपीरियंस थिंग्स लाइक ब्यूटी पैजेंट्स के लिए घर वालों को मनाना या ड्रेसेस के लिए पॉकेट मनी बचाना एंड व्हाट नॉट, देन हाउ शी विल बी हम्बल अबाउट इट। चलो सुष्मिता सेन की बात करते हैं। शी इज मिस इंडिया 1994 बट स्टिल शी इज सो डाउन टू अर्थ की क्या कहने। यू नो उनका जो मिस इंडिया का विनिंग गाउन था ना, वो उन्होंने एक लोकल सरोजिनी नगर के टेलर से सिलाया था एंड जो फैब्रिक बच गया था उससे उनके मॉम ने कुछ और पैटर्न्स उनको बना के दिए एंड शी हैड ओनली दिस ऑप्शन अवेलेबल। 4 अलग अलग डिजाइनर ड्रेसेस खरीदने के पैसे नहीं थे। दिस इज व्हाट सुष्मिता सेन सेड। सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अफोर्ड सम थिंग्स फॉर कॉमन पीपल। टुडे शी कैन बाय एनीथिंग फॉर हरसेल्फ बट वो जो रूट्स है ना उनके, उन्होंने उसे लेट गो नहीं किया है। शी हैज स्टक टू दैट। आई होप अभी आपको डिफरेंस समझा होगा। दोनों भी काफी ब्यूटी पैजेंट्स जीत चुकी है बट एक काफी प्राउड साउंड करती है एंड एक काफी हम्बल। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो एक पर्सनैलिटी बनाती है एंड इसमें वी कैन नॉट ब्लेम उर्वशी फॉर नॉट हैविंग दैट डेप्थ इन हर थॉट्स। अभी आप सोच रहे होंगे दैट व्हाई आई एम साइडिंग विद हर, बिकॉज आई फील लाइक कि उर्वशी राउटेला में से ना आई मी माई सेल्फ ये वाला सब स्टेटमेंट्स अगर आप निकाल दोगे ना एंड जस्ट फॉर अ सेकेंड इफ यू इग्नोर हर सोशल मीडिया, देन शी इज अ गुड पर्सन। शी मे नॉट रिलेट टू कॉमन मैन्स प्रॉब्लम बट शी एटलीस्ट मेक्स एन एफर्ट। लाइक उनके नाम पे एक फाउंडेशन भी है, उर्वशी राउटेला फाउंडेशन, एंड ये फाउंडेशन ने क्राइसिस के टाइम पे काफी मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए डोनेशन दिया था एंड जो चीज एक्चुअल में बायो में डालना चाहिए वो वहाँ नहीं है। लाइक फॉर श्योर शी हैज अ PR टीम, नो डाउट। सो आई वंडर व्हाई हर PR टीम इज नॉट गिविंग अ प्रॉपर एडवाइस। उनको तो एज थर्ड पर्सन दिख ही रहा होगा कि ये जो भी उर्वशी ने उनके बायो में लिखा है वो कितना ऑड साउंड कर रहा है एंड उनका काम ही है टू टेल हर व्हाट शी कैन से पब्लिकली एंड व्हाट शी कैन नॉट। दे कुड हैव जस्ट स्टॉप्ड हर फ्रॉम पोस्टिंग दैट आई एम द फर्स्ट टू गेट दिस वीजा वाला पोस्ट, देन थोड़ा लाइव सेशंस के पहले उनको प्रेप करना इज ऑल दिस समथिंग दे कुड हैव डन एंड सेव्ड हर फ्रॉम सच डिजास्टर्स। एंड जो भी सेलिब्रिटीज का PR टीम होता है ना, दे ऑल डू दिस। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी जो SRK का इशू चालू है उसकी बात करें तो ये मोमेंट पे उनकी जो PR टीम है वो क्लियरली SRK को एडवाइस कर रही होगी कि ही शुड ले लो एंड नॉट टू गिव आउट एनी स्टेटमेंट्स पब्लिकली, बिकॉज देयर आर टाइम्स जब हम फ्रस्ट्रेशन में इंस्टा स्टोरी वगैरह गुस्से में डाल देते हैं बट ऐसी गलती सेलिब्रिटीज नहीं कर सकते। तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि उर्वशी को ऐसी गलतियां करने से उनकी PR टीम क्यों नहीं रोक रही। या तो दे लैक ब्लंटनेस एंड अपनी बॉस की गलती वो पॉइंट आउट नहीं करना चाहते होंगे, या उर्वशी उनका सुनती नहीं होगी। तो इन में अगर ऐसे goof up होते हैं तो you can't completely blame roasters for roasting her. Like she says and does some things which are really funny and she brags about herself to next level. Here are some of her posts where she is saying that she is first Indian actress and youngest Indian to receive 10-year UA's golden visa within 12 hours. उसके बाद there is one more post where she is saying first Asian Indian artist to be on the cover of Soul Arabia official. तो clearly she has this obsession about being first. And ऐसे सिनेरियो में कोई अगर ना चाहता भी होगा still उसे रोस्ट करेगा. She also comes out as a sweet person in her interviews and all, but her social media is very messy. जिसकी वजह से people like me who are inclined towards her and want to like her, still we cannot defend her when she does such things. Like Sakshi Shivdasani के सिनेरियो में it was pretty obvious that she was getting targeted for no reason. It was easy to defend her. But उर्वशी के केस में जो रोस्टर्स बोल रहे हैं दैट शी ब्रैग्स अबाउट हरसेल्फ और साउंड स्नॉबी, ऑल दिस यू कैन नॉट डिनाई, इट इज ट्रू एंड सेल्फ ऑब्सेशन टू सम एक्सटेंट इज ओके। खुद से प्यार करने में कुछ बुराई नहीं है बट एक्सट्रीम ऑब्सेशन इज अनहेल्दी। अगर आप आई मी माई सेल्फ ही करते रह गए ना तो आपके आजू बाजू वाले लोग आपसे दूरियां बनाने लग जाएंगे, जैसे ऋषभ पंत ने उर्वशी के साथ किया। जस्ट किडिंग बट आई होप यू गॉट द अंडरलाइंग पॉइंट। खुद से प्यार करो बट दूसरे के साथ भी प्यार बांटो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हो? आपका क्या ओपिनियन है उर्वशी राउटेला के बारे में? क्या आप भी उसके काम को पसंद करते हो बट ये सब की वजह से थोड़ा एक स्टेप बैक ले लेते हो? ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू वांट देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।